attend a guest lecture on Global Entrepreneurship Perspective organized by IIC. Before moving ahead, we must know what actually global entrepreneurship is. It is seeking out new innovative business activities like exporting, licensing, and opening new sales offices. It is basically done on worldwide basis. On the behalf of IMT College of Management and IIC Cell, I feel great privilege to introduce our guest of honor, Ms. Tina Chaudhary, Assistant Professor, Innovation Ambassador of IIC. She is a self-directed, action-oriented professional having a rich experience in teaching and administrative services for more than 15 years. She is a postgraduate and is pursuing her research. Her area of specialization is HR and marketing. She has a keen interest in writing research papers for various conferences and journals. She has presented various papers in international conferences and seminars. She has also published different articles in edited books. Also, she has attended various workshops at national level institutes. She is dedicated, resourceful, and goal-driven professional educator with a solid commitment of research and teaching. Now, I would like to call our guest of honor on stage to enlighten us with her words of wisdom. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning. Before starting the lecture, I would like to thank Abhishek sir as well as the college for inviting me for this lecture, this whole session. Basically, as the name indicated, a guest lecture. But as per my opinion, this is not guest lecture. It is a total interactive lecture. So whatever you want to ask, you can ask in between related to my presentation or related to the topic of discussion is global entrepreneurship perspective. So before PPT design. So before starting this lecture, I would like to ask, what do you mean by global? What do you mean by entrepreneurship? Any idea from the class? Anyone? सही गलत जो भी आपको लग रहा है. A person who is not enrolled in a business. Who is not Enrolled in a business and planning to start a new business. Ma'am, a person who innovates new ideas. okay, very good. Last benchers? Anything? Highly creative student? No? So entrepreneurship is basically, as the student told me, that entrepreneurship is a process through which entrepreneur is a person and entrepreneurship is a process. It's a process through which we can encourage the youngsters to start the new enterprise. So enterprise, entrepreneurship and entrepreneur. You will be enterprise or entrepreneur? Entrepreneur, because you are real person, you are the individual. So you have to start what? You have to start some enterprise. So your output is your enterprise. So let's start this discussion. Global perspective basically है क्या? क्या आप समझते हैं global perspective से? तो global perspective is basically an exclusive approach through which an individual sees the world in which they are currently located. You are located in this earth? Yes or no? Yes, ma'am. Now it's globalization. What is globalization? Anyone? Have you heard the word globalization or globe? मैम कई सारे नेशन को जो कंट्रीज होती हैं वो आपस में अलग-अलग कल्चर्स. Okay, so globalization, as we can say that this is a globe and globe आप यहाँ है इंडिया में है लेकिन you can access everywhere. You are using the international product, yes or no? ब्रांड आप यूज करते हैं, बहुत सारी ब्रांड्स आपने सुनी भी है. वो ब्रांड्स ऐसे नहीं है कि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग है, वो ब्रांड्स कहाँ की है, वो बाहर की फॉरेन कंट्रीज की है. तो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू वी आर कनेक्टिंग टू द होल ग्लोब. ग्लोब मीन जो आपने ग्लोब बचपन में देखा होगा, वो गोल गोल घूमता था, अर्थ जैसा दिखता था, सबने देखा होगा आपने जरूर, ज्योग्राफी पढ़ी होगी अगर किसी ने भी. तो वो ग्लोब क्या है? नाउ इट्स in today's scenario that globe is the connected with everyone. आप बैठे यहाँ हैं लेकिन you can connect to USA. चाहे technological advancement है, whether it is related to your
technological advancement, whether it is related to your creativity, you can connect everywhere. Yes or no? Yes, ma'am. तो बेस इज क्लियर कि हम क्या करने जा रहे हैं. बेसिकली हम क्या, ये लेक्चर क्या है, क्यों है आप यहाँ पे बैठे हुए. रीजन बिहाइंड इट कि कॉलेज ने आपको फोर्स करके बिठा दिया है. ऐसा आपको इंटेंशन के साथ नहीं बैठना है. योर इंटेंशन मस्ट बी कि आपको कुछ लर्न करना है. एंड दिस लेक्चर इज जस्ट गिविंग यू द इंसाइट दैट हाउ यू कैन बी क्रिएटिव एंड हाउ कैन यू बी इनोवेटिव एंड हाउ यू कैन डिजाइन योर थिंकिंग इन अ डायरेक्शन सो दैट यू कैन स्टार्ट अ एंटरप्राइज. ओके, तो आप सबको everybody is unique here? Yes, सब similar है. No, You ma'am. all are unique or you are similar? You all are unique. It means you all have the creativity. सबके अंदर, चाहे वो आपकी एजुकेशन में हो, किसी की आपकी किसी और फील्ड में हो, but you all have the creativity. तो creativity क्या है? That creativity makes you unique. एंड यूनिकनेस मीन्स, कभी किसी ने सोचा था कि जो गोलगप्पे और टिक्की हम बाहर खा रहे हैं बैठ के, जब वो हमारे घर तक आ जाएगी तो क्या बन जाएगा? बिजनेस बन जाएगा. कौन डिलीवर कर रहा है? जोमेटो कर रहा है या स्विगी कर रहा है. तो ये क्या है? ये सब आपका एक आइडिया क्लिक करना है. आप कैसे क्रिएटिविटी, कौन सा ऐसा आपका माइंड में जो थॉट है जो आपको कन्वर्ट कर सकता है ना बिग एंटरप्राइज और बिग एंटरप्रेन्योर. ओके, so basically first and foremost thing for entrepreneurship और enterprise global entrepreneur बनने से पहले आप लोगों को क्या है? अपने डोमेस्टिक एरिया में आप, यानी कि अपने सेल्फ ओरिएंटेड आपको एस्पेक्ट को एनालाइज करना है. You cannot be an entrepreneur until unless you are not creative and innovative. So we can say that creativity and innovation in entrepreneurship and design thinking is must. This is a new phenomena recent time में last 2-3 years से गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज एम्फेसाइजिंग ऑन द डिजाइन थिंकिंग. अराउंड आपके इन्फोसिस में 1 लाख एम्प्लॉइज थे जिनको सिर्फ डिजाइन थिंकिंग का कोर्स स्पेशली कराया गया. क्यों कराया गया? ताकि वो जो एम्प्लॉई है वो अपने आप की जो थॉट प्रोसेस है उसको कैसे डिजाइन कर सकता है. वी ऑल हैव द थॉट्स. एक दिन में 60,000 थॉट आते हैं हम सबको. यू नो दैट. तो 60,000 थॉट है, लेकिन वो थॉट आते हैं चले जाते हैं. नाउ इट्स योर टाइम. How you can be entrepreneur? When you will start, when you will design your thought process in a direction. So वो आपके लिए क्या है? वही आपको entrepreneur बनाएगा. तो that is totally dependent on creativity. Creativity है क्या? कोई नया organ है जो निकल आता है, जो डेवलप हो जाएगा जैसे जैसे आप ग्रो करोगे. कोई एक से अलग से सीख निकल आएगा. ये दिस इज क्रिएटिविटी. ऐसा कोई चीज है? Yes or no? No. But what do you mean by creativity? Creativity is your पर्सनल ट्रेट. इट इज योर इनहेरेंट ट्रेट. वो कहीं से सीखा नहीं है. एवरीबडी इज क्रिएटिव, एवरीबडी इज यूनिक. ओनली थ्रू योर यूनिकनेस, थ्रू योर क्रिएटिविटी यू कैन स्टार्ट अ न्यू बिजनेस और यू कैन बिकम द एंटरप्रेन्योर. तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए. मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप से पहले आपको क्या करना है? आपको सेल्फ एंटरप्रेन्योर बनना है. यू शुड हैव द ऑथेंटिक पावर. Authentic power means you have the power to control self, not control others. Easy होता है, आप लोगों को कंट्रोल करना इजी है मेरे लिए, बट खुद को कंट्रोल करना इज अ बिग टास्क. तो आप लोगों को एंटरप्रेन्योर, इफ यू वांट टू बिकम द एंटरप्रेन्योर, you have to control yourself. You should have the authentic power within yourself. तो authentic power का मतलब क्या है? कि मन कर रहा है, अच्छा चलो मोबाइल चला लेता हूँ. मोबाइल नहीं चलाना है, आपको कंट्रोल करना है कि नो, दिस बॉडी इज माइंड. As per my mind, I will control everything. This is known as authentic power. And authentic power, your creativity, your innovation, वही आपको एक अच्छा entrepreneur बनाएगा. So I hope the introduction or the base is clear to everyone. कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्यों हम यहाँ बैठे हुए हैं. So we can say what is creativity. As I told you that creativity is often associated with the art. We can say it is a unique feature. Why it is a unique feature? It is a unique art. आर्ट मीन्स हर कोई प्रैक्टिकल वे में उसको अलग तरीके से. मैं बोलती हूँ ये बहुत अच्छा है. अब अच्छे की डेफिनेशन में भी मेरे लिए डिफरेंट है, बट अच्छा आपके लिए भी डिफरेंट हो सकता है. तो दैट यूनिकनेस हो गया है, वो आपकी आर्ट है. वो शोज करती है कि देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ प्रैक्टिकलिटी टू डिफाइन द क्रिएटिविटी. सो क्रिएटिविटी इज मस्ट व्हेन यू वांट टू बिकम द एंटरप्रेन्योर. बहुत सारे एंटरप्रेन्योर आपने सुने भी होंगे, बहुत सारे नए नए बिजनेस स्टार्ट हुए. कोई एग्जाम्पल देता जाए यहाँ से, एनी बिजनेस जो आपको लगता है ये बहुत अच्छा बिजनेस एंटरप्रेन्योर रहा है या है. मैम खाने पीने का बिजनेस. खाना पीना का बिजनेस.
ओके, लाइक जोमेटो एंड स्विगी Yes, ma'am. उससे सप्लाई कर रहा है बट वो उससे एसोसिएटेड। और ओला उबर सुना, फिजिक्स वाला, वेरी गुड। एनीथिंग एल्स? रैपिडो, बोलो आपको सब आता है। ब्लिंकिट और Zepto. ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, कोई ऐसी चीज जो सुनी नहीं है बट मार्केट में बहुत अच्छा स्कोप चल रहा है? रैपिडो, रैपिडो आ गया। और ओला, ओला उबर आपने बताया। एनीथिंग एल्स? सो क्या है वो लाइक आप लोगों ने रेडियो एफएम, आप दोबारा से आपने वर्ड सुना होगा, रेडियो एफएम चल रहा है आजकल, यस और नो? कंपैरेटिवली जब भी आप गाड़ी में बैठते हो तो सबसे पहले एफएम चल जाता है, चाहे आप सुने ना सुने, लेकिन वो क्लिक होता है। तो वो एक इंडस्ट्री थी जिसको इनोवेशन और क्रिएटिविटी से वापस इमर्ज किया गया। टैक्सी इंडस्ट्री एकदम खत्म हो गई थी, आप लोग तो टैक्सी इंडस्ट्री को वापस अपने फ्लोर पे लेके, कौन लेके आया? क्रिएटिविटी। जो ओला उबर है वो क्या करे, वो टैक्सी तो प्रोवाइड कर रही है आपको। जो टैक्सी इंडस्ट्री एकदम खत्म हो गई थी उसको रीजनरेट करना इज अ काइंड ऑफ इनोवेशन, इज अ काइंड ऑफ क्रिएटिविटी। So this is your creativity aspect. We can say that other benefit of creativity in design is that it allow designer to explore different possibilities and option. हमें creativity क्यों required है? Because creativity is totally dependent. It gives you the feeling to grab the opportunities. मार्केट में क्या है, जैसे आप लोगों के असाइनमेंट मिलते हैं, अब सब बच्चा बहुत अच्छा कंफर्टेबल नहीं है असाइनमेंट बनाने में। अगर यहाँ पे कोई दो बच्चे ऐसे हो कि जिनको लगे कि हम सबके लिए असाइनमेंट बनाएंगे, वो अपने आप में क्या उसके लिए ग्रैब कर रहा है, उसको लग रहा है कि एवरीबडी इज नॉट कंफर्टेबल हियर टू राइट द असाइनमेंट, वी कैन राइट थिंग फॉर द स्टूडेंट। वो अपने आप में एंटरप्रेन्योर बन रहा है। एक छोटी सी प्रॉब्लम जो दूसरों के लिए प्रॉब्लम है, इट कैन बी द अपॉर्चुनिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर यू, यस और नो? ऐसे आप लोग रोजमर्रा में बहुत सारी प्रॉब्लम देखते हैं। तो क्रिएटिविटी क्या कहती है? क्रिएटिविटी से दैट अ डिजाइन, आप लोग डिजाइन कर सकते हो अपने थॉट प्रोसेस को, थ्रू विच यू कैन grab the opportunities and the possibility that is available in the market or available nearby you. Okay, clear है? I hope कि कल यहाँ से कोई ना कोई जनरेट करेगा आइडिया कि यस आज से ये करना है मुझे। नेक्स्ट, so creativity is totally dependent. It is a three main aspect of creativity is the domain skill, your creative thinking skills as well as your intrinsic motivation. Domain, what do you mean by domain? डोमेन क्या होता है? कुछ वीडियो में सबको सही गलत आंसर दीजिए बट दीजिए। इस एरिया में आर्टिस्ट काम कंफर्टेबल। जैसे कि आपका क्या एरिया है, इन विच स्टूडेंट आपका भी तो कोई स्टोरी एरिया होगा। ओके, और कोई आंसर? डोमेन, डोमेन मीन्स आपका नॉलेज जिस पर्टिकुलर फील्ड में आप हैं। लाइक अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो कॉमर्स इज योर डोमेन। तो क्रिएटिविटी ऐसे नहीं बेटा, अभी हमने आई टोल्ड यू कि क्रिएटिविटी कैसे जनरेट होती है। क्रिएटिविटी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन योर थॉट प्रोसेस एंड थॉट प्रोसेस इज टोटली डिपेंडेंट ऑन योर नॉलेज। व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज यू so domain skills are basically developed as one become the expert of a field. You are the people who are expert in your commerce area. So this is your domain. Domain means the master of the fundamental of discipline. जो भी आप discipline कर रहे हैं, if you are the commerce student or you are the technical student, then that domain, that fundamental discipline is your domain. Always be expert in your domain. क्योंकि आपको हम मल्टीटास्किंग या मल्टीटास्क नहीं बोल रहे हैं। आई जस्ट सेइंग दैट इफ यू वांट टू बी क्रिएटिव, प्लीज हैव द गुड नॉलेज ऑफ योर डोमेन, दैट इज उसी से आपकी क्रिएटिविटी क्रिएट होगी। वहीं से तो आपको क्लिक करेगा कि मुझे करना क्या है आगे। क्रिएटिव थिंकिंग, उस डोमेन के बेसिस पे एवरीबॉडी आपका थॉट प्रोसेस कहाँ चलता है, जो आपके पास नॉलेज है, जो आपके एक्सपीरियंसेस है, वहीं से आपके थॉट प्रोसेस आते हैं। तो क्रिएटिविटी सेज दैट द जो भी आपके पास डोमेन हुआ उसको नोबल वे में और उसको डाइवर्सिफाई में इंडिपेंडेंटली आप कैसे अचीव करते हैं, दैट इज योर क्रिएटिव थिंकिंग वे। कोई भी चीज है बट उसको नई तरीके से सोच लेना, दिस इज योर क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस। एंड थर्ड वन इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन वी कैन से दैट इट इंप्लाइज द रीजन फॉर डूइंग थिंग्स कम फ्रॉम विद इन। फोर्सफुली नहीं करना है, यहाँ आपको फोर्सफुली बिठाया गया है, बट कोई भी आपके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है। Yes or no? Yes or no? No. You have some passion as well as the pleasure. आपको इंटरेस्ट क्रिएट हो, आपको मन लगे कि यस
there is something good for me in this session, only then you will join the session. तो intrinsic आपका to creativity main 3 point ही आपके main है. You should be expert in your domain. You should be very creative thought process. You should have the good thought process, as well as you should have the passion. और it should be intrinsic. External impose नहीं होना चाहिए हमेशा कि आपको फोर्सफुली हर चीज कराई जा रही है. कभी कभी अपने आप से जो इनर सेल्फ होता है वही आपका क्या होता है, वही आपका इंटरेस्ट या इंट्रिंसिक होता है. तो इट शुड बी ऑलवेज इंटरनल. क्लियर? डू यू हैव द डोमेन? यस और नो? डोमेन आप जिस फील्ड में हैं, यू आर द एक्सपर्ट ऑफ दैट डोमेन. आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं है. और अच्छा हो कैसे सकता है? आपके पास एक्सेस है बेटा. यू आर द ब्लेस्ड जनरेशन. आपसे प्रीवियस जनरेशन भी स्केर्सिटी में गई है, लाइक हम, क्योंकि आपसे जो नीचे वाली जनरेशन आने वाली है, दैट इज अगेन वो भी स्केर्सिटी में रहेगी, क्योंकि आप लोगों की जनरेशन है वो सबसे ब्लेस्ड है. टेक्नोलॉजिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, एनवायरमेंटली यू आर द ब्लेस्ड जनरेशन. जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो क्या होगा? हमने अपनी इकोलॉजी को इतना खराब कर दिया है कि उनके लिए हवा पानी भी कैसे होगा? वैसे नो, आप अपने बच्चों वाली जनरेशन सोचिए. तो बेसिकली वो क्या है, वो आपका इनहेरेंट पार्ट है कि आपको ऐसा कोई प्रोडक्ट या ऐसी कोई सर्विसेज इंट्रोड्यूस नहीं करनी है जो आपके इन्वायरमेंट के लिए हार्म हो. तो यू हैव टू बी स्टार्ट दैट एंटरप्राइज, और यू हैव टू चूज दैट प्रोडक्ट और सर्विस दैट कैन सपोर्ट द नेक्स्ट जनरेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है इनोवेशन. Creativity is clear? Creativity, everybody has the creativity, yes or no? Yes, bolo, yes, we are creative. Yes, we are creative. We can do anything. So second thing is innovation. अब ये creativity, innovation और इन दोनों से मिलके क्या आएगा? Entrepreneurship. Okay, that's why I am giving the overview about these two main aspects. ये आपके कहीं से मिले नहीं है, इनहेरेंट आपको मिले नहीं है, बाय जेनेटिक आपके अंदर आए नहीं है. यू हैव टू क्रिएट. डोमेन बढ़ाइए, अपने आप आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करिए. नेक्स्ट इनोवेशन. इनोवेशन मींस इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज, गुड सर्विस और द प्रैक्टिस व्हिच आर इंटेंड टू बी यूजफुल. ऐसा कोई प्रोडक्ट या आपको नहीं बनाना है जो यूजफुल ना हो. माइंड में बहुत सारे आइडियाज आते हैं, बट दैट आइडिया, वो आइडिया ये नहीं है कि वो अगर हमारी पूरी सोसाइटी को हैम्पर कर रहे तो वो आइडिया हमारा इनोवेशन है. वो आपका यूजफुल होना चाहिए, बिकॉज डिजाइन थिंकिंग सेज दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइन थिंकिंग एंड द एंटरप्रेन्योरशिप सेज दैट इट शुड बी ह्यूमन सेंट्रिक, ह्यूमन ओरिएंटेड होना चाहिए. इसीलिए कोई भी प्रोडक्ट स्टार्टअप कहाँ से होता है? जब आपकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होती है, या अपॉर्चुनिटी ग्रैब कहाँ से होती है? व्हेन यू हैव सम प्रॉब्लम. तो इसलिए आपका वो यूजफुल होना चाहिए जो भी आपने इनोवेशन करने जा रहे हैं आप. An essential element of the innovation is that application in a commercially successful way. अब ऐसा नहीं कि हमेशा सोशल सर्विस करनी है, आपको कुछ अर्न भी करना है अगर कोई नया एंटरप्राइज कर रहे हो. सेकेंड एस्पेक्ट से दैट कमर्शियली सक्सेसफुल. कमर्शियल मीन्स मनी, प्रॉफिटेबिलिटी भी होनी चाहिए. So innovation can be of different type. It can be invention. इन्वेंशन वर्ड सुनिए सबने. इन्वेंशन जो पहली बार आता है, हमेशा जब कोई चीज आपने कभी देखी नहीं, वो नई चीज इंट्रोड्यूस हो, दैट इज योर इन्वेंशन. लाइक एरोप्लेन है, लाइट बल्ब है, these are the invention. This is extension. Extension क्या है? Extension is the expansion of the product. Already जो existing product है. Invention means जो कभी नहीं देखी वो आपने नया स्टार्ट किया, वो आपका इन्वेंशन होता है. तो इनोवेशन कैन बी योर इन्वेंशन, innovation can be the extension, innovation can be the duplication, and innovation can be synthesis. अभी होता क्या और आप लोगों के सराउंडिंग है ये सब कुछ देखा भी होगा. एरोप्लेन पहली बार आया तो it was like a invention. Second आता है extension, the expansion of a product, service or the process. Like Facebook या सोशल मीडिया सब यूज कर रहे हैं, वो क्या है आपका एक्सटेंशन. या आप बैंकिंग सर्विस यूज कर रहे हो, उसके अंदर यूपीआई आ गया. यूपीआई क्या है? यूपीआई इज अ काइंड ऑफ
एक्सटेंशन, उसी सर्विस को, बैंकिंग सर्विस को उन्होंने एक्सटेंड कर दिया। इससे आपने उससे क्या, तो इट्स अ काइंड ऑफ है इनोवेशन, बट किस फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंशन। आप अपनी सर्विसेज को और इनहांस कर रहे हैं। लाइक आपने आजकल वो आ रहा है कि आप कपड़े पहन, आप जो भी कोई लेने जा रहे हैं, आप कोई भी एप्पल लेने जा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, मेरा लाने वाले हैं कि आपको दिख जाएगा कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तो वो क्या है, वो एक्सटेंशन कर रहे हैं, वो अपनी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में उन्होंने एक नया एक्सपेंशन किया कि आप खरीदने से पहले खुद का लुक देख लीजिए कैसे लग रहे हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ एक्सटेंशन। नेक्स्ट इज डुप्लीकेट। ये क्या होता है, बहुत सारे देखे हुए होंगे। इट इज अ काइंड एट रिप्लिका ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। लेस हमने कहा है, लेस का डुप्लीकेट भी खाया है। लोकल मार्केट में कहीं जाइएगा, वहाँ पे लेस की जैसे बस उस पर स्पेलिंग मिस्टेक होगी या कुछ और होगा, लगेगा लेस खरीदा है, हल्दीराम खरीदा है। वो भी क्या है, वो अपने आप में एक इन्वेंशन है। यहाँ पे प्रोडक्ट सर्विस रिप्लिका विद एडिशनल क्रिएटिव एंड एंटरप्रेन्योरल टच। आपने लेस को देखा है, आपने जोमेटो देखा, जोमेटो के साथ ऐसा तो नहीं है, जोमेटो स्विगी के साथ अब कोई नया नहीं आ रहा है। जैसे आपने वो आपका डुप्लीकेशन आपका ऑलरेडी जो बिल्कुल मार्केट में है, जो बहुत अच्छी ब्रांड इमेज बना के रखे हुए हैं, आपने क्या किया, उसी आइडिया को किया और उसकी डुप्लीकेशन कर दिया, बट नया नाम नया थे, वो भी इन्वेंशन है। आपने रूरल एरियाज में वो मार्केट में ले जाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट आता है सिंथेसिस। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट एज वेल एज द फैक्टर इनटू द न्यू फॉर्मेशन। लाइक स्टारबक्स इंडिया में आ गई है, गए हैं आप लोग स्टारबक्स? नहीं गए, कुछ बच्चे गए होंगे, बट आप स्टारबक्स है क्या, कोई आइडिया? जो गए हैं यस मैम वाले बच्चे, वो तो बताएं। कॉफी ब्रांड, कॉफी शॉप है, कॉफी के साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ अ प्लेस बिटवीन होम वर्क एज वेल एज सोशल लाइफ। आप वहाँ बैठ के, तो ये नए जो या MBA को चाय वाला एंड ऑल, ये सब क्या है, ये आपका सिंथेसिस है। या आप लाइब्रेरी में जा रहे हैं, लाइब्रेरी में आपको कॉफी भी मिल रही है, चाय भी मिल रही है। थीम बेस्ड रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, थीम बेस्ड रेस्टोरेंट बहुत सारे होते हैं, वो आपका सिंथेसिस है, वो आपका कॉम्बिनेशन। उन्होंने क्या किया, खाना भी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको राजस्थान वाला लुक भी दे रहे हैं, आपको फीलिंग भी आ रही है। तो इट्स अ काइंड ऑफ सिंथेसिस, इनोवेशन है, जिसको हम बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्लब किया और एक नया बिजनेस स्टार्ट किया। तो आपको उस वे में थॉट प्रोसेस लेके आना है। क्लियर? क्लियर है? इनोवेशन या तो नई चीज बनाइए, अगर आपके पास इतनी फैसिलिटी है, इंक्यूबेशन सेंटर्स है, इस टाइम पे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, दे हैव द वेरी गुड आइडिया दैट द इंक्यूबेशन सेंटर्स आर प्रोवाइडिंग यू द सीड फंडिंग। वो आपको ग्रांट करती है फंड, बस आपका आइडिया इतना अच्छा होना चाहिए दैट कैन कन्वर्ट इनटू द एंटरप्राइज। ओके, वो ऐसी मार्केट में उसकी, इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट आएगा क्रिएटिविटी इनोवेशन। तो अब एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप इज इक्वल टू क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। क्लियर? इससे पहले हम इनोवेशन क्रिएटिविटी क्यों पढ़ रहे थे? क्योंकि आप लोगों को एंटरप्रेन्योर बनना है। आप में से एक या दो या तीन, अब एंटरप्रेन्योर बनने से बेनिफिट क्या होगा, क्या बेनिफिट है, क्यों बनना चाहेंगे? अभी तो हम वही नहीं बन पा रहे जो हम हैं, नहीं? मैम प्रॉफिट स्टूडेंट है तो स्टूडेंट भी फोर्सफुली बिठा, मैम प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट मोटिव होगा और सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर। कुछ आपके NGOs हैं, वो सोशल एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो उनका प्रॉफिट मेकिंग की जगह जगह उनका सोशल वेलफेयर है। एवरीबडी हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ नीड। बहुत सारे आपके ऑथर्स हुए हैं, मास्टर वगैरह की अगर आपने पढ़ी होगी, उन्होंने बताया कि हर की अलग नीड होती है। मे बी किसी की सोशल नीड आपको डोमिनेट कर रही है, किसी की प्रॉफिट नीड कर रही है, किसी की सेफ्टी नीड कर रही है, किसी की आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड डोमिनेट कर रही है। तो एज पर योर नीड, एज पर योर इंटरेस्ट, एज पर योर क्रिएटिविटी, एज पर योर स्किल सेट, एज पर योर माइंड सेट, यू हैव टू स्टार्ट द एंटरप्रेन्योरशिप। So creativity means thinking new things, innovation means doing new things। दोनों में डिफरेंस आ गया, एक थॉट है और एक प्रोसेस, डूइंग है। डूइंग आपने उसको कन्वर्ट किया है, अभी तक तो यह है। कैन आई ऑब्जर्व योर थॉट? Yes or no? No, But if you will convert your thought into a prototype, into a picture, into a graph, into the words, I can read, I can understand आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो थॉट क्रिएटिविटी को आपको कन्वर्ट करना है इनोवेशन में, डूइंग में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपके अंदर क्या होगा, इट विल इमर्ज लाइक एंटरप्रेन्योरशिप, आपकी स्किल्स डेवलप होंगे। ओके, क्लियर? ऑल आर कनेक्टेड? सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू विल बी स्टार्ट योर माइंडसेट इन दैट मैनर, जिसके थ्रू आपको क्या करना है, क्रिएटिव वे में सोचना है, थॉट को इधर उधर नहीं, खाली फेसबुक
स्नैपचैट, इंस्टाग्राम नहीं देखना है। उस टाइम को आपको कन्वर्ट करना है अपने डोमेन को बढ़ाने में। डोमेन जब तक बेटा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आपका कॉन्फिडेंस कहीं से नहीं आएगा। यू शुड बी वेरी गुड इन योर डोमेन, इट मीन्स योर नॉलेज मस्ट बी ओके। Design thinking, how the design thinking, entrepreneurship, creativity and innovation is related. Design thinking, we live in the world of complexity, agree or not? You are the complex person or a simple person? Very complex. No one can understand क्या चल क्या रहा है माइंड में अभी। तो कॉम्प्लेक्सिटी है, तो कॉम्प्लेक्सिटी को कन्वर्ट करने, उस एम्बिग्यूटी को आपको एक डिजाइन देना है। डिजाइन में आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे। हम थॉट प्रोसेस को बल्क में 60,000 थॉट प्रोसेस आपके अंदर आ रहे हैं, सुबह से शाम तक 60,000 से भी ज़्यादा थॉट आते हैं। उसको कन्वर्ट करना है, डिज़ाइन देना है, एक अपने आप को डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है, वही आपका। तो डिज़ाइन थिंकिंग स्टार्ट विद द पीपल एज अ यूजर, एज अ क्लाइंट, एज अ कस्टमर, एज अ स्टॉक होल्डर, एज अ बोरोवर। आपको एज अ डिज़ाइन थिंकर कैसे करना है कि आपको नियर बाई जो भी आपको प्रॉब्लम्स लग रही है मार्केट में या आपके नियर बाई किसी भी सराउंडिंग्स में, आपको वही उसी के बारे में सोच के उस पर डायरेक्शन देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा। लाइक सोलर इस टाइम पे सोलर क्या चल रहा है, या ईवी आ गई है, पेट्रोल, डीजल, देन कार की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगर एग्जाम्पल दें तो पहले पेट्रोल था, डोमिनेट कर रहा था मार्केट, देन डीजल, फिर उसके बाद सीएनजी, अब सबको हमने खत्म कर दिया, सबकी स्कैर्सिटी कर दिया। अब क्या करना है, फिर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ गए, और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जब खत्म हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, तो सोलर भी खत्म कर दोगे आप। फिर नेक्स्ट दोबारा से कुछ होगा तो वही वहाँ से जहाँ से प्रॉब्लम्स आपको लग रही है, ये प्रॉब्लम आ गई, स्कैर्सिटी हो गई है, सीएनजी कम हो गई है, ये इश्यूज आ गए हैं, आपको सस्टेन करना है, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट पे फोकस करना है। तो यू हैव टू थिंक एज अ यूजर, कौन सा यूजर, एज अ कस्टमर आपको फोकस करना है। डिजाइन थिंकिंग का मेन कॉन्सेप्ट इज टोटली ह्यूमन सेंटर। लोगों से ही आपको स्टार्ट करना है, लोगों को ही आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है। एवरीथिंग इज फॉर द ह्यूमन, आप ही देंगे, यू आर द ह्यूमन, लोगों के लिए ही प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो आपका ह्यूमन सेंटर्ड होना चाहिए। इट शुड बी कोलैबोरेटिव एप्लीकेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, दैट इज क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल। क्रिएटिव मैं भी आपको बहुत बार पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। क्रिएटिव मीन्स कोई भी चीज़ अवेलेबल है तो उसको नया तरीका देना है, दिस इज योर क्रिएटिविटी। It involves analytical thinking as well as the intuitive thinking. Analytical thinking means analytical thinking. So analyze करना, understanding. Everybody has a cognitive, everybody has a brain. वो mindset आपका क्या होना चाहिए, analytical way में। क्यों, कैसे, question mark, teacher, if I am standing here, क्यों आई है, क्या करने वाली है, क्या, that is your, you can, this is the analytical thinking. Okay? बजट आया, क्यों आया, कैसे आएगा, तो ये क्या है, ये अगर इस तरीके का आपका थॉट प्रोसेस हो जाएगा तो यू विल एबल टू ग्रैब द प्रॉब्लम फ्रॉम द एनवायरनमेंट नियर बाय। उसको प्रॉब्लम लग रही है, वो आपको अपना फ्रेंड आपको प्रॉब्लम बता रहा है, बट उस प्रॉब्लम से आप क्या कर रहे हो, आप कुछ एनालाइज कर रहे हो और आपको मे बी वो कोई अपॉर्चुनिटी अवेल हो जाए। ओके, दैट्स व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन दिस एनालिटिकल थिंकिंग एंड इंट्यूटिव थिंकिंग। इट इज कंप्राइजेज, डिजाइन थिंकिंग इज कंप्राइजेज ऑफ द माइंडसेट, और सबके पास माइंड है। माइंडसेट को आपको अपने स्किल सेट में कन्वर्ट करना है। कौन कौन से स्किल रिक्वायर्ड है मार्केट में, एंड एज अ एंटरप्रेन्योर आपको क्या होना चाहिए, आपके अंदर डोमेन अच्छा होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, एडवांस स्किल्स सीखने हैं। एक्सेल किसी को नहीं आती है तो सीखनी है, क्योंकि उसके बिना सर्वाइवल नहीं है मार्केट। आपको चैट जीपीटी एआई का फोकस हो रहा है, अगर आप एआई बेस्ड नॉलेज गेन नहीं कर रहे हैं, चैट जीपीटी सबको आता है, नहीं आता है तो सीखना है। लिंक्डइन पे कोई नहीं है, इंस्टाग्राम पे मत हो, लेकिन लिंक्डइन करना अकाउंट ओपन करिए, दिस इज मस्ट। यहीं से आपका थॉट प्रोसेस आएगा, यहीं से आपकी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए मौका मिलेगा। ओके, नेक्स्ट। So this is basically, this is your way of starting an entrepreneurship. Yours should be human centric. Human means there should be some desirability. Desirability means आपके ऑर्गेनाइज जो भी आप बनाना चाह रहे हैं, वो प्रोडक्ट हो, सर्विस हो या प्रोसेस हो, वहाँ पे उसकी डिजायरेबिलिटी होनी चाहिए। देयर शुड बी सम नीड। जब तक भूख नहीं होगी, कोई आपको खाना खिलाए, खाओगे, भूख होगी तभी तो, यानी कि सम देयर शुड बी सम डिजायरेबिलिटी। हम लोग आपको जबरदस्ती पढ़ाते रहते, आप नहीं पढ़ रहे होते, आप वॉमिट कर जाते हो, जो पढ़ाते हो वहीं के वहीं रह जाता है। तो वो क्यों नहीं है, क्योंकि आपके
आपके अंदर कोई नीड या भूख नहीं है. इट इज मस्ट दैट देयर शुड बी सम डिजायरेबिलिटी, देयर शुड बी सम ह्यूमन डिजायर ऑफ योर प्रोडक्ट और द सर्विस. सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज योर टेक्नोलॉजी और द फिजिबिलिटी. आपका जो थॉट आया है उसको आप प्रोडक्ट और सर्विस में लॉन्च करना चाहते हैं, वो टेक्निकली आपका फीजिबल होना चाहिए. टेक्निकल फीजिबिलिटी में there should be some market, there should be some demand, there should be some economical feasibility. वो आपका टेक्नोलॉजिकल एंगल दिखा रहा है. आपका थॉट ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही वो हवा में चला जा रहा है, उसके ना आगे कुछ हो ना पीछे हो. आपका थॉट ऐसा होना चाहिए, आपका आइडिया ऐसा होना चाहिए दैट इट कैन बी कन्वर्टेबल इनटू द टेक्नोलॉजी. ओके, तो दिस इज सेज द फीजिबिलिटी एरिया. थर्ड आता है बिजनेस. अगेन या तो सोशल वेलफेयर के लिए आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है, वो अलग एंगल है. उस सोशल एंटरप्रेन्योर्स अलग होते हैं. अगर आप अपना बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं तो वहाँ पे आप क्या देखते हैं, यू आर रियली इंटरेस्टेड इन द प्रॉफिटेबिलिटी. कोई ऐसा आइडिया जो ह्यूमन सेंट्रिक भी हो, जो फीजिबल भी हो और जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने प्रॉफिट में भी. दीज आर द थ्री मेन एंगल्स विच यू रिक्वायर्ड फॉर योर एंटरप्रेन्योर माइंड. एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जरूरी है प्रॉब्लम, नीड होनी चाहिए. अगेन याद रखिएगा एग्जाम्पल, जब तक भूख नहीं है रोटी अच्छी नहीं लगेगी, भूख होगी तो बहुत अच्छी लगेगी. क्यों? क्योंकि डिजायरेबिलिटी को फोकस कर रहा है. डिजायरेबिलिटी होनी चाहिए. आप 100% सक्सेसफुल होंगे इफ देयर इज अ नीड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विस इन द मार्केट. यस, नेक्स्ट. नाउ आई विल एक्सप्लेन द ईस्ट फॉर यू पीपल. ईस्ट क्या है? अगर कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस आप लॉन्च करना जा रहे हैं तो आपको सिर्फ ये ईस्ट याद रखिएगा. ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सुना होगा. आज ईस्ट की एक नई डेफिनेशन देते हैं. ईस्ट इज बेसिकली ई फॉर एम्पैथाइज, सेकंड ए फॉर एनालाइज, सॉल्व एंड टेस्ट. एम्पैथाइज क्या होता है? सिंपैथी वर्ड सुना है? एम्पैथी उसी का भाई बहन है सिंपैथी पे. तो सिंपैथी कौन बताएगा? एक्सप्लेन कौन करेगा? व्हाट डू यू मीन बाय सिंपैथी? सहानुभूति. सहानुभूति क्या होती है? एक्सप्लेन करो. सहानुभूति क्या होता है? क्योंकि एम्पैथी का वर्ड सुनाना नहीं, आपको बता के जाना है. सिंपैथी, इफ यू आर हैविंग सम फीलिंग, आपको इमोशनली फीलिंग आ रही है, आप उसके साथ अटैच हो गए, आप उसके साथ उसके लिए कुछ कर रहे हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ सिंपैथी. बट एम्पैथी होता है व्हेन यू आर पुटिंग योरसेल्फ इन द शूज ऑफ अदर्स. अपने आप को उस जगह पे रख के देख रहे हो, तब उसके बाद एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को. मीन्स यहाँ पे आप जो प्रोडक्ट और सर्विस दूसरों के लिए बना रहे हैं, पहले आप देख रहे हैं कि यस देयर इज सम डिजायरेबिलिटी. आप एम्पैथाइज हो रहे हैं, अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस में. अगर मैं यहाँ लेक्चर दे रही हूँ तो यू कैन एम्पैथाइज कि कल को मुझे भी यहाँ पे लेक्चर देना है, तो आपको कैसा लगेगा कि कोई बच्चा नहीं सुन रहा है, कोई बच्चा मोबाइल में बिजी है, तो आप वो क्या है, अगर वो एंगल से आप सोच रहे हो सारे मेरे लिए, तो वो क्या है? वो एम्पैथी है. सिंपैथी तो हुआ, ठीक है, चलो मैम आइए सुन लेते हैं. बट एम्पैथी क्या होता है? एम्पैथी आपने अपने आप को बुरी जगह पे रखा और आपने फिर थॉट किया कि ऐसा होगा तो किस तरीके से बिहेव करना चाहिए हमें. ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा बिहेवियर, क्योंकि कल को आपको उस जगह पे खड़ा होना पड़े और आपके साथ ऐसा 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 हो तो क्या होगा. तो इन द सेम मैनर वो आपका एम्पैथाइज है. कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विस लॉन्च करने से पहले, कोई भी एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप करने से पहले यू शुड फोकस ऑन द एम्पैथी पार्ट. किसके लिए बना रहे हो, क्यों बना रहे हो, उसको आप फेक डेटा नहीं लेके आना है कि बहुत अच्छा मार्केट स्कोप होगा, ईवी की डिमांड है, सोलर की डिमांड है तो हम भी सोलर वाला काम कर लेते हैं. नो, आपको जिसके लिए आपने वो प्रोडक्ट सर्विस प्लान किया है, जो आइडिया क्रिएट किया है, उनके पास जाइए, उनसे डेटा कैप्चर करिए, एम्पैथी शो करिए, दिखाइए कि हाँ उनको सही में वो नीड है जो आप कर रहे हैं, वो आपका एम्पैथी प्रोडक्शन होगा. तो कोई भी प्रोडक्ट सर्विस, इसीलिए इस टाइम पे कस्टमाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया है. एवरीथिंग इज कस्टमाइज. कस्टमाइज मीन्स वो आपके लिए प्रॉपर स्पेशली आपके लिए डिजाइन की गई है चीज़, ऐसा फील होता है. तो एम्पैथी वहीं से आती है. जितनी बुक्स आप पढ़ रहे हैं वो इंटरनेशनल ऑथर की बुक्स होती हैं, बट इंटरनेशनल ऑथर आपका एग्जाम्पल जब आप उसमें कोट करके देखेंगे तो इंडियन एग्जाम्पल्स होते हैं. तो उसने क्या किया, वो कस्टमाइज कर दिया. वो स्पेशली यहाँ का बच्चा सीख नहीं पाएगा अगर मैं स्टारबक्स के या इंटरनेशनल यूएसए के अपने एग्जाम्पल कोट करती रहूँ. यू विल कनेक्ट योर सेल्फ व्हेन यू हैव द एग्जाम्पल नियर बाय यू. पतंजलि का एग्जाम्पल हो, हर कोई इसको रिलेट कर लेगा, या जो आपके आसपास कंपनीज है. तो इसीलिए बुक्स को भी कस्टमाइज किया गया है एम्पैथी बेसिस पे. वैसे नो, अब मार्केटिंग की कोई बुक है, मार्केटिंग है आपके पास,
सब्जेक्ट नहीं है। कॉमर्स में मैनेजमेंट भी नहीं, मैनेजमेंट तो बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा होगा। कोई इंटरनेशनल ऑथर बताओ, मैनेजमेंट में आप जो बुक रेफर कर रहे हो कोई भी ऑथर, मैनेजमेंट की कोई इंटरनेशनल ऑथर की बुक बताओ, कोई इंटरनेशनल ऑथर बताओ मुझे, तभी तो मैं कोरिलेट कर पाऊंगी। एम्पैथी क्या है? एनीवन? फ्योल अपने ओके फ्योल देखिए बुक कभी? और कोई बुक आज आके सब लाइब्रेरी में जाएंगे और जाके अपनी लाइब्रेरी में यहीं से आपकी एम्पैथी शुरू होगी कि मैं देख लूँ कि बुक्स किसी और इंडियन ऑथर एंड इंटरनेशनल ऑथर एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए मैं बोल रही हूँ डोमेन, जब तक डोमेन कैप्चर नहीं करोगे आप क्रिएटिविटी में आपको कॉन्फिडेंस जो एकदम बूस्ट करेगा। बेटा जैसे आपकी डोमेन हाई होगा, आपकी नॉलेज एनहांस होगी, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके वर्बल जो आपके सेंटेंसेस हैं उनमें सब में चेंज आ जाएगा क्योंकि आपका डोमेन हाई हो गया है। तो स्टीफन पी रॉबिन्स है, जाके देखिएगा मैनेजमेंट के बारे में। तो स्टीफन पी रॉबिन्स आपका क्या कर रहा है, वो एक इंटरनेशनल राइटर है, बट उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अपनी इंटरनेशनल बुक को नहीं, उन्होंने इंडियन स्टूडेंट या एशियन स्टूडेंट के लिए स्पेसिफिकली कस्टमाइज कर दी है बुक इंडियन ऑथर के साथ। क्योंकि यहाँ का बच्चा अपने एंगल से सोचेगा, तो दिस इज नोन एज एम्पैथी, एम्पैथाइज। इज दैट क्लियर? तो इसीलिए तो हम लोग उसको रेफर कर रहे हैं, आप लोगों को भी करनी है। मैनेजमेंट की बुक जाके मैम से बोलूँगी, मैं फीडबैक लूँगी, आप लोगों ने देखी मैं बुक या नहीं देखी है किसी की बुक। सेकेंड आता है एनालिसिस। अब आपने एनालाइज कर ली प्रॉब्लम, यस देयर इज अ नीड, देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अपॉर्चुनिटी। एम्पैथी वे में आपने उसके बाद आप उसको एनालाइज करेंगे, मीन्स उससे रिलेटेड सारा डेटा कलेक्शन। तभी तो आप कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे। सक्सेस और फेलियर का डिपेंडेंसी आपकी कहाँ पड़ती है, आपके एनालिसिस पार्ट पे पड़ती है। अब आपने एनालिसिस भी कर लिया, यस देयर इज अ नीड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। नाउ थर्ड स्टेप इज सॉल्व। अब उस प्रॉब्लम को या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कैसे बनाया जाए, सोल्यूशन कभी भी एक नहीं लेना है, सोल्यूशन हमेशा एक दो ऑप्शंस रखने हैं। डिसीजन मेकिंग तभी बेटर होती है व्हेन यू हैव द ऑप्शन। ओके, तो सोल्यूशन में खाली एक नहीं कि यही प्रोडक्ट है, यही चलेगा, यही नो, डोंट बी रिजिड, ऑलवेज बी फ्लेक्सिबल, ऑलवेज बी अडेप्टेबल। जो चेंज दिख रहा है, आपको लग रहा है कि यस यहाँ चेंज होना है, चेंज करिए, वहीं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड होगा। एंड लास्ट वन, टेस्ट के लिए भेजिए, टेस्ट करिए कि टेस्ट कहाँ जाके होगा, जहाँ से आपने एम्पैथी की थी, उन्हीं लोगों से जिनके लिए प्रोडक्ट बन रहा है। हमेशा टेस्टिंग वही होनी चाहिए। आपने प्रोडक्ट बनाया किसी और के लिए और टेस्ट कराया किसी और से, क्या वो रियल पिक्चर देगा? वो सक्सेस फेलियर का कभी रियल पिक्चर नहीं आएगा। तो यू शुड बी एम्पैथाइज, यू शुड बी एनालिटिकल इन योर माइंड, यू शुड बी वेरी सॉल्विंग नेचर होना चाहिए आपका, और लास्ट में टेस्ट भी आपको ट्रू करना है। 100% आपका बिजनेस, आपका एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज सक्सेसफुल होगी अगर आपने इस प्रोसेस को फॉलो किया, और दैट इज योर बेस्ड ऑन योर डिजाइन थिंकिंग कॉन्सेप्ट। ओके, डिजाइन थिंकिंग बेसिकली योर एंटरप्रेन्योरशिप, योर क्रिएटिविटी, एम्पैथी। अभी हमने बताया एम्पैथी मीन्स योर अंडरस्टैंडिंग। पहले आप अंडरस्टैंड करेंगे चीज़ों को, जो भी हमने ईस्ट बताया उसी का डिफरेंट वे में ऑफ एक्सप्लेनेशन है। अंडरस्टैंडिंग, दैन एक्सप्लोरेशन, दैन मटेरियलाइज। आपने उसको कन्वर्जन कर दिया। बिजनेस में अभी हमने ह्यूमन, टेक्निकल एंड बिजनेस 3 पॉइंट थे, सिर्फ ये 3 पॉइंट याद कर लीजिए, यही आप करने हैं। ह्यूमन सेंट्रिक करना है, प्रोडक्ट लॉन्च, सर्विस लॉन्च, अपने अंदर ऐसा माइंडसेट डेवलप करना है जो इन तीनों के ऊपर फोकस करेगा। दूसरी चीज, यू शुड अंडरस्टैंड द थिंग डीपली, यानी कि एम्पैथाइज एंड एनालिसिस। सेकेंड पॉइंट नीचे एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन में यानी कि सिर्फ मैं ग्रेटर नोएडा के 2-4 बच्चों से पूछ लेता हूँ तो मेरा डेटा कलेक्ट हो गया। एक्सप्लोर करना है, क्योंकि आपका अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ग्लोबलाइज या ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव, ग्लोबल एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट जस्ट फॉर द ग्रेटर नोएडा, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट द यूएसए, होल ग्लोब, इसलिए ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव रिक्वायर्ड। ओके, नेक्स्ट थर्ड आता है इसमें मटेरियलाइज। मटेरियलाइज मींस इसको कन्वर्जन करना है। नाउ वी हैव सम केस स्टडी। ओरल भी सबने सुना है, उसको नहीं पढ़ो, बस इधर देखो। ओरल भी सबने पढ़ा है, सुना है, वर्ड सुना है। क्या है, क्या बनाता है? टूथपेस्ट और टूथब्रश, टूथब्रश और टूथपेस्ट बनाता है। वेरी गुड।
अब टूथब्रश उसके सबसे यूनिक टूथब्रश होते हैं, अगर कोई यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब कैसे एम्पैथी होती है, जो भी हमने 4 स्टेजेस बताए हैं, वो 4 स्टेजेस बेसिकली आपके यहाँ पे हम केस स्टडी के थ्रू, ताकि आपको क्लियर हो जाए, इसलिए केस स्टडी हम एक्सप्लेन करते हैं। ओके, सो ओरल बी बहुत उसमें इलेक्ट्रिक टूथब्रश भी बनाता है, यस और नो? वो अगेन क्या है, वो भी डिमांड है, वो भी जैसे जैसे लोग कि ट्रैवलिंग में जा रहे हैं तो उन्होंने क्या इलेक्ट्रिक टूथब्रश भी इंट्रोड्यूस कर दिया। नाउ यू विल रीड क्या लिखा, अब बताओ, पढ़ो। ओरल बी का केस स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद एक केस स्टडी और उसके बाद आपको फ्री करेंगे लास्ट नोट के साथ। When you think of what children love to do, brushing दिस their इज बेसिकली चिल्ड्रंस टूथब्रश। जो इतने सारे हम जो कस्टमाइज टूथब्रश देख रहे हैं, जो इस टाइम पे तो सारी कंपनीज बच्चों के लिए स्पेशली, बड़ों के लिए अलग होता है, बच्चों के लिए अलग टूथब्रश होता है, बट जब पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया ये टूथब्रश स्पेसिफिकली फॉर द चिल्ड्रन, दैट इज डन बाय द ओरल बी। वो कैसे आया, कैसे उन्होंने प्रॉब्लम्स को होल्ड किया, क्या था वो आपका कहाँ से आएगा, एम्पैथी पार्ट से, कि बच्चों के लिए आप टूथब्रश बना रहे हैं, लेकिन मैंने किससे डेटा ले लिया, मैंने डेटा आप लोगों से ले लिया, एडल्ट से। क्या सही होगा? आपके ग्रिप, आपका होल्ड हैंडल करने का जो उसको हैंड कर ग्रिप है वो डिफरेंट होगी और एक बच्चे की डिफरेंट होगी, यस और नो? तो एम्पैथी क्या कहती है कि जिस पर्टिकुलर आप क्लाइंट के लिए या कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप उसी के साथ जाइए, उसी को ऑब्जर्व करिए, उसी से डेटा को एनालाइज करिए, उसी से आपकी आइडिया जनरेशन बेटर होगा। चलो। will not initially come to mind, and it can prove to be struggle for parents who are trying to teach their children healthy living and hygiene habits to get their children to do it twice every day. Starting with oral hygiene early on is extremely important for a child's overall health, and for kids to have this routine and enjoy brushing their teeth in the morning and at night can be challenging. Therefore, Oral-B wanted to improve the design of the conventional kids toothbrush so it would be easier and more comfortable for them to use. The oral hygiene company has always wanted to be more innovative than their competitors and was brotherhood and bothered by the fact that the toothbrushes they offered for children looked the same as the ones that were being sold by any other toothbrush provider. Oral-B saw the opportunity to optimize a product that had not gone through a lot of changes in the previous years, get ahead of competition and raise their market share. That's right. Then for this purpose, Oral-B started working together with the design company IDEO, who emphasize the design thinking approaches and the value it creates for consumers as well as business. So basically उन्होंने क्या किया, उन्होंने बच्चों के जिनके लिए डिज़ाइन होना था ब्रश, उन्हीं को ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा कि बच्चा कैसे होल्ड करता है, जब बड़ा जब टूथब्रश करता है तो कैसे होल्ड करता है। उन्होंने डीपली उसको ऑब्जर्व किया एंड दे फाइंड कि जो बच्चे की ग्रिप होती है वो सॉफ्ट होती है। तो उन्होंने क्या किया, उस हैंडल को, जो हैंडल सबके लिए नॉर्मल थे, उन्होंने उस हैंडल को ब्रॉड कर दिया। क्यों किया? क्योंकि बच्चे के हाथ छोटे हैं, वो ऐसे पकड़े हुए हैं, तो उसकी हथेली में आएगा, जब उसका हैंडल चौड़ा होगा तभी वो ग्रिप कर पाएगा। और उसके बाद जब वो ब्रश करेगा तो उससे उसकी जो कैविटी है, उसकी जो ओरल हेल्थ है वो ज़्यादा इम्प्रूव होगी, रादर दैन जो पतला वाला हैंडल होगा तो उसको जो ब्रश करेगा। तो कितना क्या है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बट उसने क्या किया, बच्चों के लिए अलग से डिज़ाइन किया, उनकी बॉडी को देखते हुए उन्होंने, तो इट्स अ काइंड ऑफ क्रिएटिविटी। कैसे इनोवेशन क्रिएटिविटी आई, सिर्फ कस्टमाइज किया, एक इक्वल सबके लिए एक सा ब्रश न बना के अब क्या हो गया, सबके लिए कस्टमाइज ब्रश हो गया। उससे पहले कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ओरल बी ने सबसे ज़्यादा इन्वेंशन और इनोवेशन किया है, एक्सपेंशन किया है अपने इस पर्टिकुलर बिजनेस में। सबसे ज़्यादा जो भी आप साइज, जिगजैग एंड ऑल एवरीथिंग, अब तो इतना बल्क में है, अब तो सब डुप्लीकेट हो रहा है। तो डुप्लीकेशन भी आपने देखा है मार्केट में, उन्हीं की कॉपी दूसरे प्रोडक्ट भी दूसरे ब्रांड भी कर रहे हैं। क्लियर हुआ इनोवेशन? बट बस जो फर्स्ट टाइम लेके आता है वो अपने आप में क्या होता है, विनर होता है। नेक्स्ट, now we have the second case study, that is life saving dog. This is the last for the day. थोड़ा सा और आपको पेशेंसली सुनना है, क्या है, कहाँ से आपको क्लिक हो सकता है।
वो आपका बिजनेस ओरिएंटेड आपका आइडिया जनरेशन था या आपका एंटरप्रेन्योरशिप का आइडिया था कि कैसे। उसके बाद सेकेंड आता है लाइफ सेविंग नोट। अब यहाँ पे जो लाइफ सेविंग नोट है वो क्या हो सकता है? इट कैन बी द लाइफ सेविंग नोट, इट कैन बी अ बिंदी। सबने सुना है, सबने अपनी मदर्स को या जो गर्ल्स है उन्होंने पहनी भी होंगी, या जो बॉयज है उन्होंने अपनी मदर को अपनी सिस्टर को सबने देखा होगा कि बिंदी लगाते हैं। तो बिंदी जो थी, अब उन्होंने क्या इन्वेंशन किया, कैसे उनका थॉट प्रोसेस आया, कैसे उन्होंने कस्टमाइज किया और एक छोटी सी बिंदी को उन्होंने बाकी लोगों के लिए लाइफ सेविंग कर दिया, जो आपके अंडर प्रिविलेज पीपल हैं। एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के एग्जाम्पल बेसिकली पड़ेगा आपको बेटा, बता आपकी भी रीडिंग्स चेक हो रही है। Life saving tool. Ray Group Singapore idea turned on a traditional habit. Almost every Indian woman wears bindi, a traditional symbol of beauty that adorns the forehead. The Ray Group suggests to the clients Talwar bindi that they develop and distribute bindis that double as iodine patches. So what they are doing? They are converting bindi into the iodine patches. Iodine की deficiency से majority of the जो rural areas की women होती है वो डेथ हो जाती है या उनको डेफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्रे ग्रुप ने सिंगापुर उन्होंने स्टार्ट किया कि बिंदी जो है उन्हीं बिंदी को हम आयोडीन पैचेस में कन्वर्ट कर देते हैं, और जब भी कोई पूरे दिन में वो अपनी बिंदी जरूर लगाएगी, वो बिंदी लगाएगी तो उस पर्टिकुलर बिंदी से वो अब्जॉर्ब करेगा आयोडीन। तो क्योंकि पिल्स खाने में इश्यूज होते हैं, नहीं दवाई खाई भूल गए ये किया, तो आपका जो उन्होंने ऑप्शन क्या प्रोवाइड किया, दे प्रोवाइड अ बिंदी कि आप उससे इतने इंडिया की जो इतने वुमेन्स है रूरल एरियाज में जिनको आयोडीन की डेफिशिएंसी हो रही है, उनको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, कि वो अलग से सप्लीमेंट ले या पूछे या खाए या याद करे कि मुझे आयोडीन की गोली खानी है। और उन्होंने क्या किया, बिंदी बनाई और वो बिंदी डिस्ट्रीब्यूट की, सर्कुलेट की गई मिनिमम प्राइसेस में, फ्री आंगनवाड़ी एंड ऑल। उन्होंने एनजीओज ने उनको सपोर्ट किया और मेजॉरिटी ऑफ द विमेन ने अपनी लाइफ को सेव किया। तो दिस इज व्हाट, दिस इज एम्पैथाइज, दिस इज एनालिसिस and this is a design thinking and this is innovation through which you can implement your idea into the market or into the society. Clear? कुछ है नया इसमें कि बिंदी से भी हम लोगों की जान बचा रहे हैं, तो अपने आप में इनोवेशन है। तो इनोवेशन अभी अगेन आपको याद करना है, इनोवेशन कैन बी इन्वेंशन। इन्वेंशन नहीं कर सकते हो तो क्या करना है, एक्सपेंशन करना है, सिंथेसिस करना है, या फिर ये सिंथेसिस ही तो हुआ, बिंदी लगाते हैं, ब्यूटी बढ़ाते हैं बिंदी लगा के, तो उसके साथ साथ आयोडीन का पैचेस उसमें आयोडीन लगा देते हैं ताकि सबको हेल्थ इश्यूज भी हो। तो क्या है, एक छोटी सी आपकी ह्यूमन सेंटर्ड प्रॉब्लम है, यस और नो, पॉजिटिविटी ग्रैब भी हो गई, प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकल गया। तो इसलिए आपको ये 4 स्टेजेस लर्न करनी है, एम्पैथाइज, ईस्ट, एनालाइज, सॉल्व एंड टेस्ट। टेस्ट हुआ, आयोडीन सबको लगा कि हाँ इशू नहीं है, कोई हेल्थ इशू नहीं आ रहा है, वो ऑब्जर्व भी कर रही है उनकी बॉडी उसको, तो दिस इज अ सोल्यूशन। ओके, सो अब क्या करना है, ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव या ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए यू शुड हैव इन यू क्रिएटिविटी, जो ऑलरेडी है, कहीं से लानी नहीं है, कहीं नहीं है, एवरीबडी हैज द क्रिएटिविटी आपके अंदर, सबके अंदर यूनिकनेस है। वो यूनिकनेस इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, कोई अच्छा लिखता है, कोई अच्छा बोलता है, कोई अच्छा सोचता है, उसको आपको डिज़ाइन करना है, इसलिए उसको हमने डिज़ाइन थिंकिंग के साथ को रिलेट किया है। उसको आपको कन्वर्ट करना है अपने इनोवेशन में, और वो इनोवेशन आपको क्या कर सकता है, प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्जन कर सकता है। तो यानी कि एंटरप्रेन्योर आप खुद है, एंटरप्रेन्योरशिप आपको प्रोसेस डेवलप करना है, और उसके साथ साथ आपको क्या करनी है, इस्टेब्लिश करनी है वो एंटरप्राइज आपके लिए प्रॉफिटेबल होगी। यू विल प्रोवाइड लॉट्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी टू अदर्स ऑल्सो, यस और नो। अपने आप तो आपका प्रॉफिट हो ही रहा है, सोसाइटी की वेलबींग आप कर ही रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप कर ही रहे हैं, साथ में आप क्या कर रहे हैं, बाकी जो लोग हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। सक्सेसफुल करने के लिए कोई चीज़ बताइए।
should be very creative. उससे अलग उसके जैसे आपने डोमेन एनहांस किया, डोमेन कहाँ से आएगा? बुक से, बुक में जाना पड़ेगा, पहले उसको इलैबोरेट करना पड़ेगा। जिस दिन आपका डोमेन क्लियर हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आपका और क्या चीज़ है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होगी 101%। आप एक बार 1 महीना एक्सपीरियंस तो करके देखिए, जो बोल के जाते हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ, कैसे पता चलेगा? तभी पता चलेगा तो आप उसको करो। की स्किल्स अभी एक्सपोर्टिंग, लाइसेंसिंग, ग्लोबलाइजेशन, ये सब बहुत बड़ी टर्म्स है। आप अपने नियर बाय, मैंने कहा ना, एक असाइनमेंट देखो आपके, उससे पूछो उसको क्या प्रॉब्लम है, उसी से निकाल के देखो यस आई कैन कन्वर्ट दिस प्रॉब्लम इनटू द प्रोडक्ट और सर्विस। ऑटोमेटिकली जब ये थॉट प्रोसेस आएगा वही है। अगेन दूसरी मैंने स्टार्टिंग में मैंने बताया ऑथेंटिक पार्ट, always have the authentic part in yourself. Never ever try to control others. Always try to control yourself. अपने आप आपके अंदर वो क्रिएटिविटी इमर्ज होगी, वो इनोवेशन इमर्ज होगा, और बाकी के सारे फैक्टर्स, कॉन्फिडेंस, लव, बल्क में एंड में बताऊंगी। चेंज एजेंट आप तभी बनोगे जब आप खुद को चेंज करते हो। ओके, यस बेटा, एनीवन एल्स? यस बेटा, Trying one to ask one question only. you can ask more. And as I entered, we have faced the recession cycle, and other than it, many recessions are rarely found that they progress only in trend. Then can we shift towards trend only? How can we trigger it? ट्रेंड कौन से पहले पूरी बिजनेस साइकिल बताओ। आपने रिसेशन तो रिसेशन का जब सपोज क्या होता है? मैं boom. वैसे आपने बोला इस पर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द एंटरप्रेन्योर और इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेस। आपकी जो सराउंडिंग्स है, दैट सराउंडिंग्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। द बिजनेस एनवायरनमेंट कैन बी द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। इंटरनल कैन बी इन योर हैंड, इसे आप कंट्रोल कर लोगे। लेकिन रिसेशन है, बूम है, जो बाकी ट्रेंड्स है, नोकिया वाज अ लीडर, बट उसके ट्रेंड, नए ट्रेंड आए एंड्रॉयड में, उसने विंडो को एंड्रॉयड में कन्वर्ट नहीं किया, नोकिया अपने आप नीचे चला गया, बाकी के ऊपर आते चले गए। ट्रेंड आया, ट्रेंड एज पर योर ट्रेंड तो भी आपको फॉलो, इसीलिए तो बोला है कि यू शुड बी वेरी गुड अडेप्टर। अडेप्टर नहीं होगे चाहे वो चेंज का कोई भी, जैसे अब आप बोलो मेरे को एआई सीखना ही नहीं है, मेरे पास जो है मैं वही रहूँगा, तो आप क्या कर लो, अपने आप को विजिट कर लो। तो आपको ट्रेंड को लर्न करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको सर्वाइवल आपका उसी के ऊपर है। यू शुड बी वेरी गुड इन अडेप्टेबिलिटी। आपको उस ट्रेंड के साथ साथ उन सारे साइकिल्स को आप तभी रन कर पाओगे। अगर आप बोल देते कि कोविड में हम तो नहीं हाथ धोएंगे, हम सैनिटाइजर नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने लगाया नहीं हाथ तक, तो क्या आप जी पाते? उस क्राइसिस को हमने अडेप्ट किया, उस टाइम पे सबने अपनी हैबिट चेंज करी, तभी तो हम यहाँ है। उस ट्रेंड को फॉलो करना पड़ा, क्योंकि हमें सर्वाइवल हमारा उसी को डिपेंड करनी है। इसलिए मैंने बोला था यहाँ पे सीड फंडिंग का कॉन्सेप्ट, बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स है, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज प्रोवाइडिंग लॉट्स ऑफ ग्रांट एंड लाइक मनी, सीड फंड बोलते हैं उसको बेसिकली। आपके आइडिया को उनको लगना चाहिए कि वो फीजेबल। अभी मैंने 3 चीज़ बोली यहाँ पे, शुड बी ह्यूमन सेंट्रिक, यानी कि डिमांड होनी चाहिए, डिजायरेबिलिटी होनी चाहिए, दूसरी फीजेबिलिटी हो। आप ऐसी चीज़ बना के ले आओ जो कन्वर्ट ही ना हो पाए, कभी फीजेबिलिटी हो, ना प्रॉफिट दे पाए, ना वो टेक्निकली उसको मैं कन्वर्ट कर पाऊँ, ना उसकी कोई इकोनॉमिकल कन्वर्जन ही नहीं हो, करोड़ों करोड़ों रुपए हो, तो वो आपको ग्रांट तो देंगे, वो आपका पेटेंट का मेथड आगे का, तो आपको मार्केटिंग एंड ऑल वो आपको खुद करना पड़ेगा। ऐसा तब भी नहीं है, एक बार आइडिया तो लेते हो। तो रिसोर्सेज है, उसी के लिए तो बोला गवर्नमेंट। आप आपके यहाँ पे इंक्यूबेशन सेल है ना, उसमें आप जाकर पता करें, बहुत सारी रिसोर्सेज प्रोवाइड हो जाएगा, करो तो। दिस इज नॉट थ्योरी बेस्ड, दिस इज प्रैक्टिकल। ऐसा कोई प्रैक्टिकल नहीं है। अभी आपके नियर बाय कौन सी इंक्यूबेशन सेंटर है? कॉलेज पता किया नहीं तो करो, पड़ेगा देखो, तो वहाँ पे नहीं मिलती, जब नहीं मिलेगी तो मेरे पास आना, मेरा नंबर ले लेना, मैं आपको इंक्यूबेशन सेंटर से लेके जाऊँगी, मैं आपको फंड प्रोवाइड करूँगी। अगर इफ यू हैव द एबिलिटी और इफ यू हैव द वेरी गुड आइडिया, उसको फिजिबिलिटी आपको लग रहा है कि नहीं
प्रैक्टिकल नहीं है, ये थ्योरी नहीं है, I'm not talking, मैंने तो थ्योरी कुछ बताई नहीं है, थ्योरी तो मैंने साइड करके मैं उससे प्रैक्टिकल लेके आई हूँ, इसीलिए मैंने लाइफ सेविंग एग्जाम्पल भी केस स्टडी वही दी है। ये झूठ तो नहीं है, जाके आप ना कहीं भी सर्वे कर लेना कि ये सच केस स्टडी है या झूठ केस स्टडी। तो केस स्टडी अगर आपको बताइए तो प्लीज रिस्क खाली बातें नहीं है कि थ्योरी। इंक्यूबेशन सेंटर से सीट फंडिंग है और मेरा नंबर है। Thank you so much, ma'am. I hope the Just a question on behalf of the all audience. How the Indian context and challenges of entrepreneurs is different from global perspective? Yeah, because there are global entrepreneurs, there are Indian entrepreneurs. And you all know that more than 80% are failing. So how the challenges of Indian entrepreneurs are different from global perspective? That is the question. So as you asked the question that how we are facing the challenges as the Indian from the global perspective, but we are living in that society where we are talking about the globalization only. We are serving in that kind of society where you are just associated with everyone around the world. So how we can say that our challenges is different from the global entrepreneur challenges. We all are facing at the same because we are talking about the global. तो हाँ, ऐसा नहीं है कि हमारे challenges या इंडियन जो आपके entrepreneur हैं, we are fail because we are not technically feasible. जो आपको अभी 3 points ने बताया, सिर्फ problem वही है कि हम लोगों के पास ideas है everything, but we are talking about just upper. That's why I am talking about the empathy. Empathize नहीं करोगे, idea create करोगे, we will not be successful. 100% fail होंगे हम. You should empathize. जिसके लिए प्रोडक्ट बन रहा है उसके बीच में जाइए, समझिए चीजों को, तभी आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा. ओके, सो ग्लोबल और इंटरनेशनल टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट उनके पास एडवांसमेंट है, दे आर हाईली रिसर्च ओरिएंटेड. हम लोगों का सबसे जो ड्रॉबैक है, वी आर नॉट वेरी मच रिसर्च ओरिएंटेड. हम सब चीजें फेक करना चाहते हैं, डेटा बस यहीं से मिल जाए. बनाएंगे प्रोडक्ट हम इंटरनेशनल मार्केट के लिए, लेकिन हम डेटा कहाँ से कलेक्ट करेंगे? ग्रेटर नोएडा से. तो ग्रेटर नोएडा और इंटरनेशनल बिजनेस में डिफरेंस आएगा, फेल होंगे 100%. सो दिस इज द डिफरेंस. दिस इज माय ओपिनियन रिगार्डिंग दिस. सो मच, थैंक यू एवरीवन. The session was really informative, and I hope BCom honors students would have connected these examples with their entrepreneurship development class, which I am taking. Right, students? Yes, ma'am. All right. I will sum up this session in one line. Being an entrepreneur is a mindset. Being an entrepreneur is a mindset. You have to see the things as opportunity all the time. Now I would like to call upon stage our Dean sir and Dr. Abhishek Sharma sir and HOD ma'am to facilitate